السلام علیکم ناظرین، پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب رائچ آفیشل۔ اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے، سبسکرائب کرنے اور دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انٹرنیشنلی، عالمی اور ڈومیسٹک پاکستان کے حالات کے متعلق بہت سی خبریں، بہت سی اہم جو ہیں چینل آگے چلے ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج اس خبر نے مجھے بہت سیڈ کر دیا، بہت غم زدہ کر دیا، اور غم والی بات ہے بھی۔ میری مراد یہ خبر جو ایران فارس کی ہواؤں سے آئی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، مجاہد ملت کو، مجاہد قوم کو، مجاہد اسلام کو میں کہنا چاہوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور بالکل اس مثال پہ، اس شعر کی جو فلسفہ تھا اس پہ وہ پورا اترے ہیں۔ انہیں پتا تھا، اس دن سے پتا تھا جب سے انہوں نے فلسطینیوں کی لڑائی کی، آزادی کی جنگ کو جوائن کیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ انجام سے بے خبر ہو کے، باخبر ہونے کے باوجود بھی بے خبر ہو کے اس کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، لو آج تم ہار گئی، میں جیت گیا، کیونکہ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے تمہارا راز پانا ہے۔ تو جناب، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا پیارا دوست، عالم اسلام کا تگڑا ملک ایران، پچھلے کچھ عرصے سے، میں کہنا چاہوں گا 5 سال سے، بے شمار اندرونی خلفشار اور ایک لامتناہی اندیکھی جنگ کا شکار ہے اور تذبذب کا شکار ہے، کنفیوز ہے۔ یا تو سسٹم اس کے ساتھ نہیں چل رہا، نظام اس کے ساتھ نہیں چل رہا، یا پھر وہ نظام کے مطابق نہیں چل رہا۔ تو ان دونوں چیزوں میں کچھ ایک ضرور ہے، ورنہ جنرل قاسم سلیمانی کا اتنے دلیر اور اتنے، میں کہتا ہوں، عالم اسلام کے مجاہد تھے، ان کی شہادت اور مشہور سائنسدانوں کی جو ایٹمی کام کر رہے تھے، پروجیکٹ پہ، نیوکلیر پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، ان کا اس دھرتی سے ایلیمینیٹ کر دینا، ان کو شہید کر دینا، اور ان سب کے باوجود ایرانی فوج، ایرانی انٹیلیجنس کو کیا اتنی بے خبر ہے؟ جو حوثیوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، لبنان میں حزب اللہ کو ڈیل کر رہی ہے، شام میں وہ سپاہ کو ڈیل کر رہی ہے، حافظ الاسد کے کوalition میں ہے، عراق میں اس کا آپ کہہ لیں کہ زور اثر سب کچھ ہے، عراق، سیریا، لبنان، اور یہ سارے قطر اور بحرین اور یمن، اور ان ملکوں پہ اس کا ایسے ہی اثرات ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں بھی اتنے گہرے اثرات نہیں ہیں شاید جتنے ان ملکوں پہ، اور ان کی اندرونی اور خارجہ پالیسی پہ ان کی گرفت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم رئیسی صاحب کا قتل، ایران کے سابقہ صدر، جو اپنے عہد میں ہی قتل کر دیے گئے، اپنے منصب پہ ہی قتل کر دیے گئے، اور ایران نے اس بات کو چھپایا، پردہ ڈالنے کی کوشش کی، پتہ نہیں اس کی کیا مجبوریاں تھی۔ قاتل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا قتل ہم نے کیا ہے،
आगे तो बढ़ो, शवाहिद तो ढूंढो। और ईरान कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुसा कुछ नहीं कीता। तो अगर इसके पीछे कुछ था, या तो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं, और या वो मुकम्मल तौर पे ट्रैप हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई तो इतने बड़े हादसा, भाई डिप्लोमेट है, साबिक वजीर आजम है फलस्तीन का, वो घर आया है, आपने घर बुलाया है, रईसी इब्राहिम रईसी की वो जो सेरेमनी थी, वो गम की शहादत की, उसमें भी वो आए हैं, तज़ियत करके गए हैं। और अब फिर आपके बुलाने पे आपने जिन 80 सरबराहान को बुलाया था, उनमें वो भी आए हैं। आप अपने घर आए, इतने बड़े आला मकाम, एक स्टेट के हेड से वो, हमास के फलस्तीन के हेड से वो, आप उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। फिर तो डियर ईरान, डियर ब्रदरान ईरान, फिर तो आप बनाना रिपब्लिक हो गए भाई, सॉरी। लेकिन हकीकत यही है, मैं नहीं, खुद आपका पूरा ईरान ये सोच रहा है कि हमने घर बुलाकर मेहमान को, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, और सबसे ज्यादा मेहमानों में वो चीफ गेस्ट था, उसको हमने कत्ल करवा दिया। तो ईरान को ये चीजें सोचनी होंगी। 50,000 फलस्तीनियों का बेईमाना कत्ल, 22,000 जिनमें बच्चे शामिल हैं, 16,000 खवातीन शामिल हैं, 12,000 गबरू जवान जिसमें शामिल हैं, उसको मरवा कर पिछले सिर्फ 10 महीने, ये पूरा रिकॉर्ड नहीं बयान कर रहा मैं, सिर्फ पिछले अक्टूबर से 7 अक्टूबर से लेकर इस अगस्त के इस महीने तक, आज अभी अगस्त पूरी तरह आया नहीं, तो ये हमने जुलाई तक इसको इतने बंदे शहादतें देकर, और 1,40,000 घर, फैक्ट्रियां, कारखाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा के आज मुसलमानों ने एक उस जंग अल-कुद्स की उस जंग को हार दिया। आप यकीन करें ना करें, बातें करने वाले बड़े होंगे, मेरी इस बात पे तबसरे करने वाले भी बड़े होंगे, नहीं जी क्या हो गया, आते रहते हैं इम्तिहान, ये क्या बात है। मैंने गुनवाए हैं, कासिम सलमानी से लेकर इब्राहिम रईसी तक, और साइंसदानों के नाम और सारे, और फिर ये घर बुला के प्रेसिडेंट की सेरेमनी हो रही है, प्रेसिडेंट हल्फ उठा रहा है, नया प्रेसिडेंट, मरे हुए प्रेसिडेंट, शहीद हुए प्रेसिडेंट की अभी वो कब्र की मट्टी नहीं सूखी, गीली मट्टी है अभी, और तुमने आज उस मेहमान को घर बुला के शहीद करवा दिया। दुनिया पूछेगी आपसे, फलस्तीनी पूछेंगे, इस्लाम पूछेगा आपसे, आप अपना न्यूक्लियर भी चाह रहे हैं, किस लिए बचाएंगे? जब आप ज़हनी तौर पे उनके गुलाम हो जाएंगे, आपकी नस्ल भी उनकी गुलाम हो जाएगी। अपने अंदर छुपे आपके एयरपोर्ट, आपके बॉर्डर, वो सब क्या बेकार है? इंटेलिजेंस अदारे क्या उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा? बेच दें सब कुछ, हथियार डाल दें। तो ये क्यों का मुमकिन है कि अल-कुद्स की जंग जो जीत चुके थे तकरीबन मुसलमान, हमास जीत चुकी थी, फलस्तीनी जीत चुके थे, उधर दूसरी तरफ चाइना ने पैचअप करा दिया, 14 फलस्तीनी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर बीजिंग में इकट्ठा करके उन्होंने उसके साइन करवा दिए। ओके, अब नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर भाग के अमेरिका गया, कमीला हैरिस ने जो कैंडिडेट है डेमोक्रेट की, और साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने, दोनों बड़ी बात, दोनों उसको खुला दिखा दिया, जाओ जंग खत्म। उसके बावजूद वो इतना गुस्सा हो गया, वो अपनी औकात से इतना बाहर आ गया कि वो ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को और उम्मीदवार ने प्रेसिडेंसी को, और ना यूरोप को, ना आलम इस्लाम को, ना ओआईसी को, ना अपने किसी सज्जन को, ना दुश्मन को, किसी को वो मान ही नहीं रहा।
70 लाख आबादी है टोटल यहूदियों की इसराइल में, जो हमारे किसी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर से भी कम है। और उसने दुनिया के 7.5 अरब इंसानों को यरगमाल बनाया हुआ है, माशी तौर पे, अस्करी तौर पे और ज़हनी तौर पे। ये सब ठीक है, लेकिन ये आपने जीती हुई वो जंग तेहरान की गली में हार दी, तेहरान के बाजारों में हार दी। जिस तरह इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को बुलवाकर कूफियों ने शहीद करवा दिया, आज उसी तरह फिर वही उन्हीं बाजारों में, कल शाम के बाजार से आज तेहरान के बाजार है, तेहरान में आज उनको, और वो उनको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी कहते हैं दी गई थी। अगर प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी तो आपका प्रेसिडेंट भी तो पहले 2 माह पहले शहीद हुआ है, तो ये कैसी सिक्योरिटी थी? इसका मतलब है कि आपके बुक्कल में चोर है, आपकी बुक्कल में कोई चोर है। चोर नहीं, चोरों के गिरोह मौजूद हैं, आपको वो चोर तलाश कर रहे होंगे। अयतुल्लाह खamenei साहब, आपके जो ईरानी मुकद्दस लीडर है, मेरी आपसे विनती है, इल्तिजा है, मेरी आपसे दुर्खास्त है कि अपनी बुक्कल में वो चोर ढूंढे और फिर इसराइल या किसी और मुल्क को ललकारें, वरना घर का बेदी लंका डाले। और आपकी लंका डालने की तैयारी नहीं, मुतअद्दिद दफा डाई गई है। अब इससे ज्यादा आपसे वो आपने मिसाल सुनी तो नहीं होगी, अब मैं सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि वो जो कुछ इस किस्म के लोग हैं कि वो कहते हैं एब के मार साले, मार भी खाते जाते हैं, फिर आगे से मुंह ऊपर करके एब के मार साले। तो आप भी एब के मार साले हो जो अहले ईरान हो। आपको समझ नहीं आ रही आपके साथ हो क्या रहा है? भाई अपनी बगलों में देखो, अपनी मंजी के नीचे डांग फेरो, चोरों को तलाश करो जो खबरें पहुंचाते हैं, और जैसे आप और उनके टारगेट, हर टारगेट को इसराइल ने आपके मुल्क में पूरा किया पिछले 4-5 साल में। ये बाइसे शर्म है। इसको जरा उस सदा से बाहर निकल के सोचो, इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने आज आलम इस्लाम का लीडर मरवा दिया, आपने फलस्तीनियों की, हमास की, फलस्तीनियों की, आज आपने यासर अराफात की, उन सब की ख्वाहिशों का कीमा कर दिया। तो सोचना होगा, इसमें जंग किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन अपने अंदर चोर तो पकड़ो, वरना किसी दिन आएंगे वो आपका न्यूक्लियर भी तबाह करके चलते बनेंगे और ठींगा दिखा देंगे और फिर कहेंगे चलो कर लो जो कुछ करना है। फिर क्या करेंगे आप? किसको इल्जाम देंगे? सोचने की बात है। अहले ईरान, मेरी इल्तिजा है, सोचे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचे। आप इस वक्त बहुत बड़े इम्तिहान में हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे इस इम्तिहान से, और शहीद इस्माइल खानिया जैसा नुकसान कभी पूरा नहीं होगा आलम इस्लाम से। लेकिन जिंदगी है, फिर आगे तो बढ़ेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आलम इस्लाम की खैर करे। इस चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, आलम इस्लाम आइंदाबाद।